Good afternoon, everyone. I am Dr. Jitendra Goyal, Assistant Professor, Department of Commerce, Acharya Nagendra Dev College, and visiting faculty of SOL. As you know, we are here for your SGC paper, BCom Honors, 4th semester, and the paper is Computerized Accounting System using Tally ERP9. Lot of softwares are available, but as per the syllabus of the Delhi University or UGC, we are required to study Tally ERP9. So now the basic theory related to the topic we have already discussed in our last class, and what is the meaning of financial accounting, what are the advantages of financial accounting, what are the disadvantages of financial accounting, what are the advantages of computerized accounting system, and what is the difference between computerized accounting system and the manual accounting system, what are the factors that you must keep in your mind while you are selecting your computerized software for the accounting purpose, and a lot of other accounting aspects we have already discussed related to the expenditure, revenue, capital, liabilities, assets, and the golden rules of the accounting system. Lot of things, theoretical things we have already discussed in our last class. Now in our today's class, we are going to start some practical aspect of the paper. And before starting this practical aspect, I would like to inform you that we will work on the Tally ERP9, and that is freely available on the internet. So if you are having desktop or laptop with you at your home, then you can download it and just write down in a search engine, Google पे सिर्फ आप सर्च में पेज करेंगे, that is tallyerp9download.com, तो वहाँ पे सबसे पहला लिंक ही Tally ERP9 का आ जाएगा, and it is freely downloadable and you can download it from there. But the important thing is all the application you can not run in that, because that is free version of the Tally. तो अगर आपको अपनी कंपनी के लिए कहीं पे यूज करना होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपको फीड करनी होगी, तो then you have to buy that Tally, and for the study purpose that is freely available, that you can download from the website. And I am again repeating the thing, that is tallyerp9download.com. The link will be there and you can easily download it from the internet, and then only we will be able to work in the Tally ERP9. So now coming to the topic. When you will work in the Tally, now obviously the basic step is how to prepare the final accounts. जब भी हम accounts की बात करते हैं 11th क्लास में, 12th क्लास में भी आपने जब accounts पढ़ा, manual accounts पढ़ा आपने, तो सबसे पहले आप transactions आती थी, उसके बाद उन transactions को आप journal entries के अंदर convert करते थे, journal entry से वो अपने ledger के अंदर जाती थी, ledger से वो अलग अलग books के अंदर जाती थी, and फिर उसके बाद आप उनका trial balance create करते थे, trial balance के बाद हम final accounts पे चले जाते थे. final accounts companies के भी हो सकते हैं, individual के भी हो सकते हैं, और आपके जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनकी हो सकती है. अलग अलग टाइप के फाइनल अकाउंट्स आपने प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के लिए, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, सबके लिए आपने फाइनल अकाउंट सीखे. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपका कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर आल्सो देयर. तो जितने भी हम यहाँ पे प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, अल्टीमेट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचना है. तो फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचने के लिए टैली के अंदर हमें क्या करना है, वी हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स. नाउ व्हाट आर दीस 4 स्टेप्स? द फर्स्ट वन इज द कंपनी क्रिएशन, सेकंड इज ग्रुप क्रिएशन, थर्ड वन इज लेजर क्रिएशन, एंड द फोर्थ वन इज द वाउचर क्रिएशन. जैसे ही हम वाउचर क्रिएट कर लेते हैं, लास्ट क्लास जिसने अटेंड करी थी उसे याद होगा, वाउचर क्रिएशन इज ऑलमोस्ट द लास्ट स्टेप इन द टैली. मैनुअल अकाउंटिंग जब आप करते हैं तो वाउचर क्रिएट करते हो, हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है, उसके फर्दर भी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, रेशियो एनालिसिस करना, फंड फ्लो करना, कैश फ्लो करना, लॉट ऑफ अदर एस्पेक्ट्स आर आल्सो देयर इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग और द कॉर्पोरेट अकाउंटिंग. बट इन द केस ऑफ द टैली, जैसे ही आप वाउचर एंट्रीज पास करते हैं, वाउचर एंट्रीज इज जस्ट लाइक योर जर्नल एंट्री. तो जैसी जर्नल एंट्री, जैसे आप वाउचर एंट्रीज पास करते हैं, रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी प्रोसेस्ड बाय द टैली ऑटोमेटिकली. तो बाकी सारा जो स्टेटमेंट बनाने का काम है, P&L बनाने का काम है, बैलेंस शीट बनाने का काम है, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो करने का काम है, ऑल दैट वर्क विल बी डन बाय टैली ऑटोमेटिकली. यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू एट ऑल. आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, सारे के सारे स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रिपोर्ट के जरिए तैयार हो जाती है. तो यहाँ पे हमें क्या काम करना है, वहां से क्या अलग हो गया, वहां में कोई कंपनी क्रिएट नहीं करनी होती थी मैनुअली, लेकिन यहाँ में कंपनी क्रिएट करनी है. वहां में कोई ग्रुप्स क्रिएट नहीं करने होते थे, यहाँ पे हमें कोई ग्रुप्स क्रिएट करने हैं. तो कुछ चीजें ऐसी जो हमें यहाँ करनी है मैनुअल के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मैनुअली हमें करनी होती थी लेकिन टैली के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है. तो हम टैली के अकॉर्डिंग अगर समझें तो अकाउंट्स बनाने के लिए हमें 4 स्टेप से होकर चलना है. सबसे पहले कंपनी क्रिएट होगी. आफ्टर दैट जो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप है ये इंटरचेंजेबल है. आप पहले ग्रुप बना सकते हैं, बाद में लेजर बना सकते हैं, या पहले लेजर बना के बाद में ग्रुप बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. देयर इज नो हार्म बिटवीन सेकंड एंड थर्ड. तो नाउ डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन, सेकंड एंड थर्ड स्टेप विल बी इंटरचेंज्ड. तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो चेंज नहीं हो सकता. हमें सबसे पहले कंपनी क्रिएट करनी होगी. ऐसा नहीं है कि सबसे पहले वाउचर क्रिएट करना स्टार्ट कर दो विदाउट क्रिएटिंग अ कंपनी. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो फर्स्ट स्टेप इज फिक्स, यू हैव टू मेक कंपनी फर्स्ट, देन द सेकंड एंड थर्ड स्टेप्स आर इंटरचेंजेबल. यू कैन क्रिएट लेजर फर्स्ट, देन यू कैन गो टू द ग्रुप, और यू कैन क्रिएट ग्रुप्स at the second stage, and after that if required then you can make the ledgers. And the fourth step is voucher. Again that is the fixed step. आप ग्रुप्स और लेजर के बाद वाउचर पे ही जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे. जब तक आपके पास ग्रुप्स नहीं है, लेजर नहीं है, आप वाउचर पे नहीं जाएंगे. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जा ही नहीं सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी क्रिएट करते ही आप सेकंड स्टेप को छोड़ के थर्ड पे लेजर पे आ सकते हैं.
ऐसे ही हम सेकंड और थर्ड दोनों स्टेप को छोड़ के सीधा वाउचर पे भी जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जब हम वाउचर एंट्री पास करेंगे और वहां पे जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, वो आपसे बोलेगा जैसे सैलरी आपको पे करनी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो आपके पास सैलरी का लेजर होना चाहिए, जब भी तो आप उसके अंदर जर्नल एंट्री पास कर पाएंगे, जब भी उसके अंदर लेजर पोस्टिंग हो पाएगी। तो अगर नहीं है, आपने सीधा जर्नल एंट्री पास करनी शुरू कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। टैली आपसे पूछेगा भैया आपके पास सैलरी का अकाउंट है, आप कहेंगे सैलरी का तो अभी हमने लेजर क्रिएट ही नहीं कर रखा, वो आपसे कहेगा ऑन द स्पॉट स्पॉन्टेनियसली आप पहले लेजर क्रिएट करिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू पास योर वाउचर एंट्री फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। तो हम सीधा फोर्थ स्टेप पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बार बार आपको अटकाएगा कि पहले आप इस ग्रुप पे जाओ, पहले आप इस लेजर पे जाओ, देन ओनली यू विल बी एबल टू पास जर्नल एंट्री। तो अगर हमें जब बाद में क्रिएट करना ही करना है वाउचर एंट्री क्रिएट करने से पहले, तो इससे अच्छा है कि हम पहले ग्रुप और लेजर क्रिएट कर लें। तो ऐसे ही फर्स्ट और फोर्थ को हम मान के चलते हैं कि फिक्स स्टेप है, कंपनी क्रिएट करना और वाउचर एंट्री पास करना, और सेकंड और थर्ड इंटरचेंजेबल है। इसको भी मैं इंटरचेंजेबल क्यों बोल रहा हूँ, रेस्ट ऑफ द क्लास में आप आगे सीखेंगे कि क्यों हम ऐसे इनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो लेजर क्रिएट करना है ही आपको, जैसे सैलरी का, रेंट का, इन सबके तो लेजर क्रिएट होंगे ही होंगे। ग्रुप बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि कुछ प्री डिफाइंड ग्रुप ऑलरेडी टैली के अंदर बने हुए होते हैं, तो अगर उनों से हमारा काम चल रहा है देन देयर इज नो नीड, पूरा स्टेप ही स्किप हो जाएगा, सेकंड स्टेप की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कोई क्वेश्चन करते हुए अगर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास हैं वो हमारे प्री डिफाइंड ग्रुप के अंदर फिट नहीं हो पा रही हैं, देन ओनली यू विल बी एबल और यू विल बी रिक्वायर्ड टू क्रिएट ग्रुप्स। तो ग्रुप्स बनाने की जरूरत हमें जब भी पड़ेगी जब प्री डिफाइंड ग्रुप वहां पर नहीं होगा। जैसे सैलरी का मैंने एग्जांपल लिया कि वाउचर एंट्री पास करते हुए आ गया सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सैलरी मेरे पास है नहीं, तो मुझे सबसे पहले लेजर क्रिएट करना है। अब सैलरी क्या होती है, लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी कि सैलरी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। तो सैलरी एक हेड के अंदर जाएगी, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगी। तो टैली के अंदर कुछ प्री डिफाइंड ग्रुप ऑलरेडी बने हुए होते हैं, वहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का ग्रुप वहां पे है। तो मेरा स्टेप यहाँ पे स्किप हो गया, मुझे कोई ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, सैलरी को मैंने सीधा सीधा ग्रुप के अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन आ जाती जिसका ग्रुप नहीं होता, then you are required to prepare particular group for that particular ledger। तो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन होगा, कैसी इंफॉर्मेशन होगी, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि हमें ग्रुप बनाना है या नहीं बनाना। ऐसे ही कुछ लेजर, कुछ तो मैं क्या बोलूं, सिर्फ 2 लेजर ऐसे होते हैं जो प्री डिफाइंड है, ऑटोमेटिकली जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे ऑलरेडी बने हुए होंगे। हमेशा ध्यान रखना कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का लेजर हमें क्रिएट नहीं करना है, दीज आर प्री डिफाइंड लेजर्स। जब भी आप कंपनी क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली ये 2 लेजर बन के आ जाएंगे अपने आप से, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जैसे अभी मैंने आपको बोला वाउचर एंट्री मुझे पास करनी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सैलरी का तो मैंने बनाया लेजर और उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर से लिंक कर दिया, ग्रुप से लिंक कर दिया, लेकिन कैश का लेजर मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि कैश का लेजर ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर जब भी आप कंपनी क्रिएट करोगे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो हमेशा क्वेश्चन करते हुए आपको याद रखना है 2 लेजर मेरे पास ऑलरेडी बने हुए आएंगे, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। ऐसे ही मैंने ग्रुप्स में आपको बताया कुछ ग्रुप्स मेरे पास ऑलरेडी बने हुए आएंगे, टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं। उन 28 ग्रुप्स में से 15 आपके प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। हम सारी डिटेल धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे की क्लास में। उन 28 ग्रुप्स में अगर मेरा काम चल रहा है, वो 28 ग्रुप्स कैसे होते हैं, वो 28 ग्रुप्स होते हैं आपके लाइक फिक्स्ड एसेट। तो अगर मुझे मशीनरी ट्रांसफर करनी है तो फिक्स एसेट में ट्रांसफर करनी है, फिक्स एसेट का ग्रुप ऑलरेडी वहां पे बना हुआ आपको मिल जाएगा। फिक्स एसेट का मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट का मिल जाएगा, करंट एसेट का मिल जाएगा। करंट एसेट में बहुत सारी चीजें आनी है, डेटर आना है, स्टॉक आना है, कैश आना है, बीआर आना है, बैंक आना है, तो उन सब के लिए करंट एसेट का ग्रुप आपको ऑलरेडी मिल जाएगा वहां पे। ऐसे ही आपके पास लाइबिलिटीज के लिए फिक्स्ड आपका जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर्स और करंट लाइबिलिटीज, लॉट ऑफ ग्रुप्स आर ऑलरेडी देयर। डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, तो दीज काइंड ऑफ द 28 ग्रुप्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द टैली। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने लेजर के हिसाब से उसको सही ग्रुप के अंदर लेके जाना है। फिर भी अगर मेरा कोई ग्रुप शॉर्ट पड़ता है तो मुझे वहां पे ग्रुप क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, चेक करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो कंपनी क्रिएट मुझे करनी है, वाउचर एंट्री मुझे खुद ही करनी है, जितने भी आपके क्वेश्चन में आएंगे 30, 15, 20, 25 जितनी भी जर्नल एंट्रीज है, ऑल दैट जर्नल एंट्रीज यू आर रिक्वायर्ड टू पास थ्रू वाउचर एंट्री। लेजर क्रिएशन सिर्फ 2 ही बने हुए आएंगे, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का। रेस्ट ऑफ द लेजर, चाहे उस रेंट है, चाहे सैलरी है, चाहे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, चाहे कैपिटल है, चाहे ड्राइंग है, चाहे परचेज है, चाहे सेल्स है, सारे लेजर आपको खुद क्रिएट करने पड़ेंगे। वो जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से लिंक होंगे, तो ग्रुप की जरूरत पड़ेगी। ग्रुप मेरे पास प्री डिफाइंड 28 ग्रुप्स होंगे। अगर वहां से मेरा काम चल जाता है तो मुझे कोई ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है, स्किप हो जाएगा ये स्टेप। और अगर मेरा काम नहीं चलता है देन यू आर रिक्वायर्ड टू डेट ग्रुप ऑल्सो। तो टोटल क्वेश्चन पूरा का पूरा जो एक प्रोसेस चलने वाला है हमारी आगे 15 क्लासेस के अंदर, वो इन 4 स्टेप्स के ऊपर ही चलने वाला है कि हमें कंपनी कैसे क्रिएट करनी है, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करने हैं, लेजर्स कैसे क्रिएट करने हैं, वाउचर कैसे क्रिएट करने हैं। और इससे एसोसिएटेड इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, सिर्फ क्रिएट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके बाद उसके अंदर ऑल्टरेशंस कैसे होंगे, उसमें डिलीशंस कैसे होंगे, उसमें एडिशंस कैसे होंगे, उसको हम डिस्प्ले कैसे करेंगे, उसके अंदर आप जो है वो करेक्शंस कैसे करेंगे, ऑल लॉट ऑफ थिंग्स यू विल स्टडी इन दीज स्टेप्स ऑल्सो। तो टोटल हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है इन 4 स्टेप से होकर गुजरेगा, जिसमें से सबसे पहले हमारा कंपनी से रिलेटेड सारा टॉपिक चलने वाला है। तो all these 4 steps are important for us: company creation, then group creation, ledger creation and voucher creation. Now some important keys are there, some basic keys are there। जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं या सिस्टम पे काम करते हैं
तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले आपकी 3 इंपॉर्टेंट कीज हैं जो यहाँ पे काम आने वाली हैं, एस्केप, वाई और एन। टैली के अंदर वापस जाने का रास्ता क्या है? एस्केप। ठीक है, जैसे ही आप एस्केप बटन दबाएंगे आप वापस पिछली विंडो के अंदर चले जाएंगे। हमेशा होता है ना कि यार मैं आगे आगे वापस कैसे जाऊं, गाड़ी ड्राइव करनी आ जाती है, गाड़ी आगे तो चलानी आती है, बैक करनी नहीं आती, तो यूजलेस है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि रोड पे हमें सिर्फ आगे आगे नहीं चलना, वापस भी आना है। कभी कभी गाड़ी पार्किंग में लगाने के लिए हमें बैक भी करनी है, तो सिर्फ हम आगे 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 कंपनी क्रिएट करके, लेजर क्रिएट करके, ग्रुप क्रिएट करके, वाउचर एंट्रीज पास करके सिर्फ आगे ही नहीं जाएंगे, कहीं हमें वापस आना होगा तो वापस कैसे आएंगे? बैक स्पेस जाने के लिए कीबोर्ड के अंदर एस्केप की को हम यहाँ पे यूज करते हैं टैली के अंदर, जब भी आप वापस किसी विंडो के अंदर जाना चाहते हो। वाई और एन बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे हमारे लिए यहाँ पे। वाई, जब भी हम कोई भी एंट्रीज पास करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, कुछ भी काम हम करेंगे, लास्ट में जाके हमसे वो पूछेगा आप इसको सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड एक्सेल की तरह ऊपर एक आइकन नहीं बना हुआ होगा फाइल का, जहाँ पे जाके हम ड्रॉप डाउन बटन के अंदर सेव और सेव एज आ जाए, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। तो एक पॉपअप लास्ट के अंदर हमेशा आता है कि वेदर यू वांट टू सेव योर वर्क और नॉट। तो जैसे येस और नो में हमें आंसर करना होगा। हम येस मतलब वाई सिर्फ लिखेंगे, पूरा वाई ई एस नहीं लिखना हमें। जैसे ही हम वाई प्रेस करेंगे तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और जैसे ही हम एन प्रेस करते हैं तो उसको रिजेक्ट कर देता है। एंटर का बटन भी हमारा एक्सेप्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। तो जो कीबोर्ड के ऊपर एंटर बटन है, अगर हमने प्रेस कर दिया तो इसका मतलब डेटा आपका सेव हो जाएगा। तो 3 इंपॉर्टेंट की होती है काम करते हुए। एस्केप, जब भी आपको वापस जाना होगा, कुछ भी डेटा सेव करना होगा तो ये वाई, और जब भी आपको कुछ गलती हो गई, वापस जाना, रिजेक्ट करना है, तो आप एन प्रेस करोगे तो वो डेटा सेव नहीं होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है जब भी आप काम करोगे। उसके अलावा कुछ फंक्शनल कीज हैं जो काम करते हुए काम आएंगी आपको बेसिक की के अलावा। F1 सेलेक्ट कंपनी के लिए काम करता है, F2 डेट के लिए काम करता है, F3 कंपनी जिसके अंदर सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन आ जाती हैं, सेम एज सेलेक्ट कंपनी की तरह ही काम करता है। F4 कनेक्ट के लिए काम करता है, F11 फीचर्स के लिए काम करता है, Alt F1 शट कंपनी के लिए काम करता है, Alt F2 पीरियड डिफाइन करने के लिए काम करता है, Alt F3 कंपनी इन्फो में काम करेगा, Alt F4 डिस्कनेक्ट करने के लिए काम करेगा, एंड F12 कॉन्फ़िगर करने के लिए काम करेगा। अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा हो कि सर ये सारी कीज क्या हमें याद करनी है, तो एज अ प्रोफेशनल याद होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट कीज हम सब जानते हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ में जब वर्ड में भी काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी शॉर्टकट की यूज कर रहे होते हैं। सेव करते हुए हम सीधा सीधा कंट्रोल एस कर देते हैं, पूरा लॉन्ग मेथड यूज नहीं करते। कॉपी करते हुए कंट्रोल सी कर देते हैं, पेस्ट करते हुए कंट्रोल वी कर देते हैं, कट करते हुए कंट्रोल एक्स कर देते हैं, डिलीट करते हुए कंट्रोल जेड कर देते हैं। तो सारी शॉर्टकट की हम जैसे अपनी डे टू डे लाइफ में वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में यूज करते हैं, ऐसे ही ये सारी शॉर्टकट कीज हमें अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज करनी चाहिए। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, अभी तो सिर्फ एजुकेशनिस्ट की तरह आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ना चाहते हैं, और कीज याद नहीं हो पा रही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। टैली क्या करता है, अभी हम जब टैली के विंडो डिस्प्ले देखेंगे तो वहाँ पे सारी कीज हमारे राइट हैंड पैनल पे बनी हुई आती हैं, और वहाँ पे सिंपल हम क्लिक करेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ होगा F1 सेलेक्ट कंपनी, तो वहाँ पे हम सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। डेट पे क्लिक काम करेंगे तो काम चल जाएगा। तो आप सारे के सारे बटन वहाँ पे बने हुए भी होते हैं, लेकिन उस राइट हैंड पैनल पर अगर मैं क्लिक नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, वो माउस को छेड़ते ही नहीं है, सारा का सारा काम जो होता है वो कीबोर्ड से ही करते हैं। तो कीबोर्ड से अगर आप काम करना चाहते हो, माउस को बार बार डिस्टर्ब करके और उसको क्लिक 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 करके आप काम नहीं करना चाहते हो, तो ये सारी फंक्शनल कीज हैं, शॉर्टकट कीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। इन कीज से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो बेसिक की है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, एस्केप, वाई और एन। तो ये सारे स्क्रीनशॉट लेके या याद करके या कॉपी में लिख के आप लोग आगे चल सकते हैं। आई एम गिविंग यू 10-20 minutes to write down all these keys, otherwise you will not be able to work in Tally. So now I am proceeding further. Hope the things are clear to you. कंपनी क्रिएट करना सबसे पहला, अभी हमने 4 स्टेप की बात करी थी पिछली स्लाइड्स के अंदर। तो कंपनी क्रिएट करना, ग्रुप क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना, वाउचर क्रिएट करना। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप बनता है वो बनता है कंपनी क्रिएट करना। ये सारे कॉपी पेन लेके बैठ जाना बच्चों, ये सारी की सारी चीज, सारे स्टेप लिख लेना, क्योंकि कहीं किसी बुक में, कहीं किसी इंटरनेट पे ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं है। लॉट ऑफ कंफ्यूजन विल बी देयर जब आप काम करोगे, और अगर क्लास अटेंटिवली आपने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो थिंग्स विल बी वेरी सिंपल टू यू, जस्ट लाइक ABC और 1 2 3। ठीक है, तो अगर ध्यान से सुनोगे, समझोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे, तो ये स्टेप लिख लेना, नर्सरी के बराबर का काम रह जाएगा टैली को चलाना। ठीक है, और अगर एज अ प्रोफेशनल नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है, अपने आप कर लूंगा, द थिंग्स विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स टू यू। तो आई एम टेलिंग यू, तो कॉपी पेन ले लो और ये स्टेप लिखते रहो। कंपनी क्रिएट करते हुए सबसे पहले स्टेप क्या है, हमें ओपन टैली करना है।
बहुत अच्छी बात है, टैली को हमने ओपन कर लिया। टैली को अभी ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा टैली के अंदर। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि हम फ्री वर्जन के अंदर काम कर रहे हैं तो सिर्फ हम एजुकेशनल मोड में काम कर सकते हैं, अदरवाइज पेड वर्जन आपको खरीदना पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम एजुकेशनल मोड में नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ पेड बेसिस पे ही कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे हमारे लिए वही सारी काम की चीजें होंगी जो हम एजुकेशनल मोड में कर सकते हैं। पेड वर्जन इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम आवर साइड। देन क्लिक क्रिएट कंपनी, अभी मैंने आपको बताया बहुत सारी की होती है वहाँ पे, क्रिएट कंपनी की भी एक की हमें वहाँ पे नजर आ जाएगी, वहां से हम कंपनी को क्रिएट कर लेंगे। कंपनी क्रिएट करते हुए मेरे सामने दो प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल पे हूँ, न्यू यूजर हूँ, टैली मेरी जिंदगी में पहली बार सामने आया है, तो फर्स्ट टाइम हो गया। और आई एम हैबिचुअल, आई एम प्रोफेशनल, मैं 10 बारी 20 बारी काम कर चुका हूँ टैली के ऊपर, रोज की मेरी कंपनी बनती है और उसमें एडिशन होते हैं, तो सक्सेसिव क्रिएशन हो गया कि कल तक मैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने 1000 कंपनी बना रखी है, आज एक कंपनी और बनानी है, तो सक्सेसिव क्रिएशन हो गया। ठीक है, तो दो तरीके का विंडो डिस्प्ले आपके सामने आएगा कि यू आर द फर्स्ट यूजर और सक्सेसिव यूजर फॉर डेट। उसके बाद आपको क्या करनी है, जो भी स्क्रीन आपके सामने आने वाला है आप उसके अंदर अपनी डेटा फीड कर देंगे, एंटर द डिटेल, एंटर 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 प्रेस करके सबसे लास्ट में जब आप पहुंच जाएंगे तो एक पॉपअप आएगा, वो आपसे पूछेगा वेदर यू वांट टू सेव योर डेटा और नो, तो अभी मैंने आपको बताया था हम वही प्रेस कर देते हैं अपने डेटा को सेव करने के लिए। तो कंपनी क्रिएट करते हुए हमें टैली खोलना है, एजुकेशनल मोड के अंदर काम करना है। एजुकेशनल मोड में दो तरीके से काम हो सकता है कि आप पहली बार कंपनी बना रहे हो या रिपीटेडली आप बना चुके हो, जैसा भी विंडो आपके सामने आएगी आपको एंटर कर देना है डेटा और सेव कर देना है। देखो ये स्क्रीन आपके सामने खुलेगा जब भी आप टैली के अंदर काम करोगे। टैली का एक आइकन बना हुआ होगा आपके सिस्टम में, जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। इसके अंदर आप देख रहे हैं सबसे ऊपर लाइसेंसिंग लिख रखा है, लॉगिन वगैरह लिख रखा है, तो हमारे पास लाइसेंस नहीं है, लॉगिन आईडी नहीं है। हमें क्या करना है, तीसरे नंबर पे आपको नजर आएगा वर्क इन एजुकेशनल मोड। ठीक है, हमें वर्क इन एजुकेशनल मोड और लास्ट आपको क्विट नजर आ रहा है, तो क्विट तो नहीं करना, अभी तो हमें इसमें काम करना है। डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की होती है, जैसे आप डब्ल्यू प्रेस करोगे तो इसका मतलब वो क्या सेलेक्ट कर लेता है, आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड सेलेक्ट कर लेता है। तो याद रखना डब्ल्यू मींस क्या है यहाँ पे, वर्क इन एजुकेशनल मोड। जैसे हम डब्ल्यू प्रेस करेंगे एजुकेशनल मोड में काम होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने डब्ल्यू प्रेस किया, एजुकेशनल मोड में काम करना शुरू किया, तो ये फर्स्ट टाइम अगर आप टैली यूज कर रहे हैं तो ये विंडो आपके सामने खुलेगी। देख रहे हैं आप इस विंडो के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा होगा नेम ऑफ कंपनी। मैं थोड़ा सा स्क्रीन का साइज बढ़ा देता हूँ जिससे कि और चीजें विजिबल हो जाए आपको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम ऑफ कंपनी। अभी नेम ऑफ कंपनी के अंदर, इस पैनल के अंदर नेम ऑफ कंपनी में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आई एम अ फर्स्ट टाइम यूजर ऑफ टैली। टैली आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, आपके पास नेम ऑफ कंपनी में भी कुछ भी नहीं है। तो ये विंडो आपके सामने खुलेगी जिसके अंदर कंपनी इन्फो लिखा हुआ होगा और आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पैनल पे कुछ भी नहीं है। ग्रीन 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 आपको रेक्टेंगल से बने हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली ये सारी चीजें क्या हैं, ये वो राइट हैंड साइड पैनल है जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, जहाँ पे सारी कीज लिखी हुई आती हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्यों नहीं लिखी हुई आ रही? क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने टैली फर्स्ट टाइम खोला है, अभी कोई कंपनी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए वो आपकी आसानी के लिए, सहूलियत के लिए कंपनी इन्फो की स्क्रीन सबसे पहले आपके सामने खुद ही लेके आ गया। और कंपनी इन्फो की स्क्रीन के अंदर आप देख रहे हैं अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें से क्रिएट कंपनी पे मुझे जाना है क्योंकि मुझे कंपनी क्रिएट करनी है। तो फर्स्ट टाइम यूजर जो है वो घबराए नहीं कि ये की कहाँ चली गई, नजर ही नहीं आ रही है। फर्स्ट टाइम यूजर सबसे पहले कंपनी इन्फो की स्क्रीन उसके सामने खुलेगी और वहीं पर क्रिएट कंपनी का एक ऑप्शन होगा जहां से हम अपनी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट टाइम यूजर नहीं हूं, मेरे सिस्टम में टैली पहले से पड़ा हुआ था और मैं 2 4 5 10 20 50 हजार कंपनी पहले से बना चुका हूं, तो ये कंपनी इन्फो का स्क्रीन सीधा सीधा मेरे पास नहीं खुलेगा। जैसे ही मैं एजुकेशनल मोड को प्रेस करूंगा तो ये कौन सा है, सक्सेसिव यूजर के लिए। सक्सेसिव यूजर के केस में ये स्क्रीन आपके सामने खुलेगा। इसमें आप देख सकते हैं अपर पार्ट के अंदर राइट हैंड पैनल के अंदर ये सारी कीज आपको नजर आएंगी, सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी, कंपनी इन्फो, जो अभी मैं आपको सारी कीज के बारे में समझा रहा था, कनेक्ट, डिसकनेक्ट, ऑल दैट कीज आर अपीयरिंग ऑन द राइट हैंड स्क्रीन। ठीक है, अभी लास्ट में हमने क्या देखा था, कंपनी इन्फो का स्क्रीन सीधा सीधा खुल गया था, लेकिन अब की बार कंपनी इन्फो का स्क्रीन नहीं खुलेगा। कुछ कंपनी देखो, नेम ऑफ कंपनी में आपको नजर आ रहा होगा ए डॉट कंपनी पहले से, क्योंकि यहाँ पे पड़ी हुई है, इसका मतलब इस टैली में ऑलरेडी काम हो चुका है। तो गेटवे ऑफ टैली के नाम का स्क्रीन खुलेगा। उस केस में आपके सामने जो सबसे पहला स्क्रीन खुलेगा वो गेटवे ऑफ टैली के नाम का खुलेगा। दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो हमारा लास्ट स्क्रीन था वो कंपनी इन्फो का था। अगर फर्स्ट टाइम काम कर रहे हो तो कंपनी इन्फो खुलेगा, और सक्सेसिव टाइम कर रहे हो तो कंपनी इन्फो नहीं खुलेगा। कंपनी इन्फो कहाँ पे आ गया, पैनल के अंदर आ गया, की के अंदर आ गया। अब कंपनी इन्फो ना खुल के गेटवे ऑफ टैली खुलेगा। तो हमें घबराना नहीं है कि सर उसके लैपटॉप में तो गेटवे ऑफ टैली खुल रहा है, मेरे लैपटॉप के अंदर तो कंपनी इन्फो खुल रहा है, सर इसका देखना अलग नजर आ रहा है, मेरा अलग नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, टैली में काम ऑलरेडी हो चुका है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो कंपनी इन्फो वाली जो ये की है उसने आपको खुद ही खोल के दे दी थी कि आप इसमें काम कर लो, कंपनी बना लो। और अगर ऑलरेडी काम हो चुका है तो हमें गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन नजर आएगा। इस गेटवे ऑफ टैली में से हमें कहाँ जाना है, कंपनी इन्फो के अंदर जाना है, जो राइट हैंड साइड पैनल में आपको नजर आएगा। शॉर्टकट की है इसकी Alt F3, आप Alt F3 प्रेस करके भी कंपनी इन्फो के अंदर जा सकते हैं। की याद नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल इसको क्लिक करोगे तो भी आप कंपनी इन्फो के अंदर चले जाओगे।
ठीक है सर, वेरी गुड, हम कंपनी इन्फो के अंदर चले गए। अब हम जब कंपनी इन्फो के अंदर जाएंगे तो उसके बाद हमें स्क्रीन नजर आएगा, ये वाला जो आपको लोअर साइड ऑफ द पैनल नजर आ रहा है, स्क्रीन में नजर आ रहा है, इन कंपनी इन्फो गो टू क्रिएट कंपनी। तो ये जो सेकंड है, ये वाला मेरा सबसे पहले खुल गया था अगर मैंने फर्स्ट टाइम टैली यूज किया था, तो कंपनी इन्फो का स्क्रीन आ गया था ना। लेकिन अगर सक्सेसिव यूजर हूं तो गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन आएगा, और उसके बाद जब मैं कंपनी इन्फो को प्रेस करूंगा तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा कंपनी इन्फो में, जिसमें क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, पहुंच गए हम यहाँ पे। हमने क्या किया, कंपनी इन्फो कर लिया, कंपनी इन्फो के अंदर हम क्रिएट कंपनी के अंदर चले गए। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें हमें सारी की सारी डिटेल फीड करनी है। डायरेक्टरी नेम, मेलिंग एड्रेस, कंट्री, स्टेट, पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, फाइनेंशियल ईयर, ऑल दैट थिंग यू आर रिक्वायर्ड टू फीड। जब ये सारी इंफॉर्मेशन आप फीड कर लोगे तो आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा नीचे लास्ट के अंदर। अभी हम जब प्रैक्टिकली सीखेंगे इसे, जब मैं आपको बताऊंगा, तो एक यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा लास्ट के अंदर कि वेदर यू वांट टू सेव द डेटा और नो, तो आप उसे येस प्रेस कर देंगे तो आपकी कंपनी हो जाएगी क्रिएट। ठीक है, आई होप कंपनी क्रिएट करना सबको आ गया यहाँ पे। अब हम एक काम करते हैं, अभी तक हमने जो सीखा है पहले हम उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हम काम कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सर ऐसे हमें समझाए जा रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरे इस डेस्कटॉप पे टैली पड़ा हुआ है। ऐसे जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो टैली आपके पास आ जाएगा, और उसके लिए वेबसाइट मैंने आपको बता दी। सीधा आपको गूगल पे क्या करना है, टैली डाउनलोड डॉट टैली ERP9 डाउनलोड.com, और वहां से ये सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है। तो डेस्कटॉप पे आपके पास शॉर्टकट बन जाएगा, जब आप उसको क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके सामने खुल जाएगी। ये वही विंडो है जो मैं अभी आपको अपने प्रेजेंटेशन में दिखा रहा था कि आपके पास लाइसेंस है या नहीं है, लॉगिन वगैरह सारा। हमें क्या करना है, आप डाउन की प्रेस कर करके भी W पे आ सकते हैं, या सीधा W प्रेस कर दोगे तो भी वर्क इन एजुकेशनल मोड में आ जाओगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कोई लाइसेंसिंग वगैरह पे क्लिक मत कर देना, अलग टाइप की विंडो खुल जाएंगी सारी की सारी और आप परेशान हो जाओगे। फ्री वर्जन में हमें काम करना है, और फ्री वर्जन एजुकेशनल मोड में हमें ये काम कराएगा। जैसे हम एजुकेशनल मोड में गए, क्लिक किया, ये विंडो खुल गई। यहाँ पे आपके पास दो तरीके की विंडो खुल सकती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। या तो हमें वो सीधा कंपनी इन्फो के अंदर लेके जाएगा, या गेटवे ऑफ टैली में लेके जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हो कंपनी तो कंपनी इन्फो में लेके जाएगा, और अगर बहुत सारी कंपनी पहले से बनी हुई है तो गेटवे ऑफ टैली में लेके जाएगा। तो क्योंकि मेरे सिस्टम में बहुत सारी कंपनीज पहले से बनी हुई हैं, इस वजह से वो मुझे सीधा गेटवे ऑफ टैली में लेके गया। और ये सारी कीज देखो यहाँ पे नजर आ रही है आपको। अगर ये आप फर्स्ट टाइम कंपनी बनाते तो ये की आपको सारी यहाँ पे ग्रीन कलर की नजर आती, ब्लैंक। सबसे पहले वो अपने आप से आपको ये कंपनी इन्फो, जो आप राइट हैंड साइड पैनल पे देख रहे हो, ऑल्ट F3 की कंपनी इन्फो का स्क्रीन आपको खोल के दे देता, और आपको कंपनी क्रिएट करनी पड़ती खुद। और उसके बाद ये सारे शॉर्टकट कीज आपको यहाँ पे नजर आनी शुरू हो जाती। लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ पे सक्सेसिव टाइम हम यहाँ पे कंपनी बना रहे हैं, बहुत सारी हम ऑलरेडी बना चुके हैं सिस्टम के अंदर, इसलिए गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन खुल गया। गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन खुल के हमें कहाँ पे जाना है, कंपनी इन्फो पे ऑल्ट F3 पे प्रेस कर देना है। राइट हैंड साइड पे जो पैनल आपको नजर आएगा, ये हमने क्लिक कर दिया। इसको क्लिक करके ये विंडो आपके सामने आ गई। सेलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर कंपनी, ये सारी चीजें अभी हमने सीखनी है, सब सिलेबस में है ये हमारा। ठीक है, आप सिलेबस उठा के देखोगे तो सारी चीजें उसमें स्पेसिफिकली लिखी हुई है, ये सब हमें सीखना है अभी। लेकिन सेलेक्ट तो हम जब करेंगे, शट कंपनी तो जब करेंगे, ऑल्टर कंपनी तो जब करेंगे, जब हो तो सही। तो अभी तो हम सबसे पहले स्टेप पे हैं, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी आपने प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, ये विंडो आपके सामने खुल गई जहाँ पे आप कंपनी को क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले आपसे वो पूछ रहा है कंपनी का नाम क्या है, आप कंपनी का नाम लिख देंगे अपने आप से यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल SOL क्लास 2 लिमिटेड, SOL क्लास 2 लिमिटेड हमने इसका नाम रख दिया। एंटर प्रेस कर दिया। मेलिंग नेम, उसने कहा कि इसका मेल करते हुए भी नाम यही रहना है, हमने कहा ठीक है यही रहना है, हमने एंटर प्रेस कर दिया। एड्रेस, एड्रेस पूछा उसने, हमने एड्रेस रख दिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बाद उसने पूछा कंट्री कौन सी है, इंडिया ही है। स्टेट, हम दिल्ली यहाँ पे चूज कर लेंगे, देखो सारे स्टेट खुले हुए हैं, हमने दिल्ली को चूज कर लिया। पिन कोड 110007, हमने इसका पिन कोड ले लिया। कॉन्टैक्ट नंबर, फोन नंबर लेना है अब हमें, तो फोन नंबर के अंदर आप कोई भी जो भी आपका कंपनी का नंबर होगा तो आप यहाँ पे नंबर, फोन नंबर फीड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वट एवर नंबर यू वॉन्ट टू फीड हियर। देन मोबाइल नंबर, number you will feed over here, then fax number, then email, ठीक है, SOL class 2@gmail.com। देन वेबसाइट का एड्रेस आपका जो भी कंपनियां बना रहे हैं SOL.com। देन फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, क्योंकि अब हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल से चल रहा है,
तो 1 अप्रैल 2021 से आपका फाइनेंशियल ईयर ये बिगिन हो गया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो चेंज कर लेना यहाँ पे, क्योंकि अभी तो फाइनेंशियल ईयर बिगिन ही हुआ है। अगर क्वेश्चन में तो क्योंकि पूरे साल का डेटा होता है तो डजेंट मैटर, आप इसको 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट करके करना चाहते हैं 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट करके कर रहे हो। अदरवाइज सिस्टम जनरेटेड है तो वो मान के चल रहा है क्योंकि हम अप्रैल के अंदर हैं, तो हमारा इसका मतलब ईयर स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल 2021। ठीक है, बुक्स भी कब से स्टार्ट होंगे? ऑब्वियसली जब से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, जब से बुक्स स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद आपसे कह रहा है कि कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल देना है आपको, कोई पासवर्ड वगैरह देना है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हम कंपनी में प्रोफेशनली काम करेंगे तो हम कोई ना कोई पासवर्ड देके रखेंगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अभी हम क्योंकि एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं, सिर्फ सीखने के लिए काम कर रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। देन यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, कोई आप सिक्योरिटी कंट्रोल रखना चाहते हैं नहीं, तो ये सारी फीचर्स वही हैं जो आपको पेड बेसिस पे जब आप वर्जन लोगे इसका टैली का तो ही आपको अलाउ करेगा। अदरवाइज वो आप यहाँ पे चाहो को सिक्योरिटी कंट्रोल मिल जाए, मुझे कुछ पासवर्ड वगैरह मैं यहाँ लगा दूं, तो वो आप पॉसिबल भी नहीं है, नहीं कर पाओगे क्योंकि लिमिटेड एक्सेस उसने हमें फ्री वर्जन में दे रखा है। देन करेंसी सिंबल, अभी हम क्योंकि इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं तो रुपीज का सिंबल हमने यहाँ पे ले रखा है, उसका फॉर्मल नेम आ गया इंडियन रुपीज का INR। उसके बाद जब भी कोई अमाउंट आएगा तो क्या आप उसके आगे चाहते हैं कि रुपीज का सिंबल बना हुआ है या सिंपल डिजिट लिखी हुई आ जाएगी 15,000 20,000 या रुपीज 15,000 लिखा हुआ है, तो आप येस और नो कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें इसे। दैट एड स्पेस बिटवीन द अमाउंट एंड सिंबल, दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए या रुपीज का सिंबल बिल्कुल अमाउंट से जुड़ा हुआ आना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है, हम इंग्लिश के अंदर जब भी लिखते हैं तो रुपीज का सिंबल और फिर स्पेस देके उसके आगे डिजिट लिखते हैं, तो हमने इसको यस कर दिया। शो अमाउंट इन मिलियंस, आपकी बड़ी बड़ी फिगर्स हैं कंपनी के अंदर तो आप मिलियंस के अंदर डेटा लेंगे, और अगर छोटी फिगर है लैक्स के अंदर है थाउजेंड्स के अंदर है तो आप मिलियंस को नो कर देंगे। जो भी आपका डेटा आएगा वो नॉर्मल अमाउंट के अंदर आएगा, अगर मिलियंस को आपने क्लिक कर दिया येस कर दिया तो सारा डेटा मिलियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कितने डेसिमल प्लेस तक आप अपना आंसर चाहते हैं, तो अगर आपने 2 सेलेक्ट कर रखा है, 3 सेलेक्ट कर रखा है, 1 सेलेक्ट कर रखा है या 0, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ डेसिमल प्लेस में आए ही ना तो 0 कर दिया, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब हो जाती है जब बैलेंस शीट, अभी क्योंकि हम सिर्फ पढ़ने के पर्पज से सीख रहे हैं, ठीक है। पढ़ने के पर्पज से अभी हमने क्या किया, डेसिमल प्लेस को 0 कर दिया, तो सिंपल फिगर्स आएंगी बैलेंस शीट में 13,500, 5 लाख, 6 लाख, 6,200। अदरवाइज अगर मैंने इसको डेसिमल को ऑन कर दिया, 1 और 2 प्लेस रख दिया, तो सारे डिजिट सारी डेसिमल वाली भी आ जाएंगी, वो डिस्टर्ब करेंगे आपको। तो अभी हमने इसको क्या कर दिया, 0 कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ऊपर 0 किया तो देखो जो यहाँ पे पहले 2 के बाद मुझे नजर आ रहा था पैसा, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर द डेसिमल इज पैसा, डेसिमल के बाद जो आ रहा है वो क्या चीज डिनोट करे, पैसा डिनोट करे या आपका थाउजेंड में डिनोट करे या हंड्रेड्स में डिनोट करे, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैंने तो डेसिमल में ले ही नहीं रहा, 0 ले लिया मैंने, तो डेसिमल आएगा ही नहीं, तो ना तो वो पॉइंट के अंदर रुपीज है, ना वो पैसा है, ना वो थाउजेंड है, ना वो लैख है, डेसिमल है ही नहीं। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल 0, डेसिमल हम लेके ही नहीं चल रहे। इसके बाद हमने एंटर प्रेस कर दिया, तो आप देख रहे हैं सबसे पहले पॉपअप आ गया आपके पास एक्सेप्ट, वाई और नो, वेदर यू वांट टू सेव योर डेटा और नो। तो हमने 3 चीजें पढ़ी थी सबसे पहले कि आप इसके अंदर बैकवर्ड कैसे जाएंगे, एस्केप की से जाएंगे, एक्सेप्ट या सेव कैसे करेंगे वाई से, और रिजेक्ट कैसे करेंगे नो से। तो आपको वाई यस या एनो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वाई प्रेस करके एक्सेप्ट हो जाता है, सिर्फ एन प्रेस करके रिजेक्ट हो जाता है। तो मैंने वाई प्रेस कर दिया, डेटा हो गया सेव। आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे आपकी वो विंडो खुली हुई है जो हमारे पास पहले खुली हुई थी, और लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे पहले मेरे पास एक कंपनी बनी हुई थी A1 लिमिटेड, अब एक कंपनी और बन के आ गई SOL क्लास 2 लिमिटेड। तो एक कंपनी क्रिएट हो गई जिसके अंदर 4 स्टेप हमने पढ़ने थे। पहला स्टेप था हमारा कंपनी क्रिएट करना, दूसरा स्टेप था ग्रुप क्रिएट करना या लेजर क्रिएट करना, और चौथा स्टेप था हमारा वाउचर एंट्री का। तो ये मेरी कंपनी खुल गई, इसको मैंने कर दिया क्लिक। जो भी कंपनी आप में जिसमें काम कर रहे होगे एज अ प्रोफेशनल, तो हो सकता है ना 10 कंपनी की डिटेल मेरे पास है, मैं तो अकाउंटेंट हूँ, 10 कंपनी ने मुझे अपने अकाउंट दे रखे हैं, तो यहाँ 10 कंपनी नजर आएंगी। लेकिन अभी एट प्रेजेंट आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, एट प्रेजेंट आप किस कंपनी के अकाउंट बना रहे हैं, वो यहाँ पे बोल्ड होके आ जाएगा। तो भले ये 2 कंपनी खुली हुई है, मैं 2 कंपनी के अकाउंट साइमल्टेनियसली बना रहा हूँ, लेकिन अभी एट प्रेजेंट मैं SOL क्लास 2 लिमिटेड के अकाउंट बना रहा हूँ। इसके आगे देखो क्या लिखा हुआ है, नो वाउचर एंटर। अभी मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मैंने कंपनी बनाई है तो इस कंपनी के अंदर कोई वाउचर है ही नहीं। तो इसका मतलब हमने कंपनी क्रिएट करने वाला जो स्टेप था, पहला स्टेप कंपनी क्रिएट करने वाला स्टेप हमने सीख लिया, हमारी एक कंपनी क्रिएट होके तैयार हो गई। तो मुझे लगता है यहाँ तक हमारी चीजें क्लियर हो गई है सभी को। इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज और वापस आ जाता हूँ अपने प्रेजेंटेशन पे। तो कंपनी क्रिएट करना हमने सीख लिया, ये सारा विंडो जो आपके सामने खुली हुई है, अभी हमने प्रैक्टिकली करके भी सीखा कि कैसे कंपनी क्रिएट की जाती है। इसके बाद आता है कंपनी क्रिएट करने के बाद कंपनी सेलेक्ट करना। अभी मैंने आपको बताया मेरे स्क्रीन पे 2 कंपनी खुली हुई थी, अकाउंटेंट हो 10-10 कंपनी में साइमल्टेनियसली काम करते हो, मैनेजर का फोन आ जाता है, भैया अच्छा वो P2QX लिमिटेड को खोल लो, अच्छा भैया आनंद लिमिटेड को खोल लो, अच्छा भैया प्रसाद लिमिटेड को खोल लो, उसमें एंटर करनी है एंट्री, मैंने फाइल भेजी आपको, चेक करो और एंटर करो। तो आपके पास तो साइमल्टेनियसली 10 कंपनी के काम चल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, कंपनी सेलेक्ट करनी है। तो एक तो ऑप्शन आपके पास कहती है कि ऑल्ट F3 में जाओगे, ऑल्ट F3 किसके लिए होती है, कंपनी इन्फो के लिए होती है। और कंपनी इन्फो में जैसे अभी एक ऑप्शन आया था क्रिएट कंपनी वाला, ऐसे ही वहीं पर एक ऑप्शन आपको नजर आता है सेलेक्ट कंपनी वाला। तो अभी हम कहाँ पे गए थे, क्रिएट कंपनी पे गए थे यहाँ पे, अब हमें कहाँ पे जाना है, सेलेक्ट कंपनी पे जाना है।
सेलेक्ट कंपनी पे आप जाओगे तो ये ड्रॉप डाउन आपके सामने आ जाता है, सारी कंपनीज खुल जाती है कि आपके पास कौन कौन सी कंपनी बनी हुई है। सेलेक्ट द नेम ऑफ द कंपनी इन विच यू वांट टू वर्क। अब आप क्या करेंगे, उस कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान सी चीज है। हमें क्या करना है, ऑल्ट F3 में जाना है, कंपनी इनको, और उसके बाद कंपनी कर लेनी है सेलेक्ट। वापस देखो प्रैक्टिकली आ गए, अब हम टैली खुला हुआ था हमारे पास, कंपनी इन्फो। मैं इसमें दोबारा वापस बैक जाके दिखाता हूँ आपको अब। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी क्विट नहीं करता, दोबारा कंपनी को ये टैली खोलना पड़ जाएगा हमें। ये क्विट हो गया तो हमें क्या करना है, दोबारा टैली खोलना पड़ेगा। टैली खोला आपने और सबसे पहले विंडो आई आपके सामने, उसके बाद हमने W प्रेस किया, एजुकेशनल मोड में हमने काम किया। अब बहुत सारी कंपनी मेरे पास है, आप देख रहे हो A1 लिमिटेड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पैनल पे। इसका मतलब अभी बाय डिफॉल्ट A1 लिमिटेड खुली हुई है जिसमें आप काम कर सकते हो, लेकिन मैनेजर का फोन आ गया, भैया A1 लिमिटेड नहीं, आप SOL2 लिमिटेड कंपनी की ये डेटा है, इसको फीड करना शुरू करो। तो SOL2 लिमिटेड कंपनी मुझे क्या करनी पड़ेगी, सेलेक्ट करनी पड़ेगी। कैसे सेलेक्ट करूंगा, गेटवे ऑफ टैली मेरे सामने खुला हुआ है, आप सबको पता है सबसे पहले अगर हम काम करते हैं तो गेटवे ऑफ टैली का स्क्रीन हमारे सामने खुलता है, और जिंदगी में पहली बार काम कर रहे हो तो कंपनी इन्फो का स्क्रीन काम करता है। गेटवे ऑफ टैली आ गया, कंपनी इन्फो आपको यहाँ पे नजर आ रही है, तो इसके पास जाने के दो तरीके हैं। एक तो मैं कंपनी इन्फो में से होके सेलेक्ट कंपनी पे जा सकता हूँ, जो मैंने अभी अपने प्रेजेंटेशन में आपको बताया। आप क्या कर रहे हो, कंपनी इन्फो में से होते हुए सेलेक्ट कंपनी पे गए और ये ड्रॉप डाउन आपके पास आ गया और कंपनी हो गई सेलेक्ट। या इसी का एक और तरीका है, देखो मैं एस्केप करके पीछे आता हूँ गेटवे ऑफ टैली पे, और देखो यहाँ पे कंपनी इन्फो में ना जाके मैं सीधा ऊपर F1 सेलेक्ट कंपनी, ये भी मैंने अभी आपको अपने प्रेजेंटेशन में बताया था जब कीज बताई थी, तो F1 सीधा सेलेक्ट कंपनी के लिए भी होता है। तो कंपनी इन्फो में जाके मैं एक स्टेप क्यों बिना बात बढ़ाऊं, जब सीधा का सीधा सेलेक्ट कंपनी मेरे पास ऑप्शन है। तो दोनों रास्ते हैं आपके पास सेलेक्ट कंपनी में जाने के लिए, सीधा मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया सेलेक्ट कंपनी, तो ये ड्रॉप डाउन यहाँ से खुल जाएगा सीधा। वापस एस्केप कर देता हूँ। अगर आप सेलेक्ट कंपनी से नहीं जाना चाहते, कंपनी इन्फो में से जाना चाहते हो, तो कंपनी इन्फो में जाओगे और फिर सेलेक्ट कंपनी करोगे तो भी वही ड्रॉप डाउन आपको मिल जाएगा। तो दो रास्ते मेरे पास सेलेक्ट कंपनी के पास जाने के लिए, या तो मैं कंपनी इन्फो में से होता हुआ जाऊं, या सीधा सीधा राइट हैंड पैनल पे F1 मुझे की नजर आ जाती है जो मुझे सीधा का सीधा सेलेक्ट कंपनी के पास ले जाती है। तो हम यहाँ सेलेक्ट कंपनी पे गए, सेलेक्ट कंपनी में एक ड्रॉप डाउन बटन आ गया। अब मैनेजर का फोन आया हुआ है कि भैया आप इन सारी कंपनी में से कहाँ पहुंचो, SOL2 क्लास 2 लिमिटेड कंपनी में पहुंचो। तो मैंने इसको कर लिया सेलेक्ट और कर दिया एंटर प्रेस, तो ये मेरी कंपनी खुल गई SOL क्लास 2 लिमिटेड। इसमें मैंने काम करना शुरू कर दिया, आधा घंटा हो गया, फिर मैनेजर का फोन आ गया, अरे ऐसा काम करो, B2 लिमिटेड कंपनी की ये डेटा आ गई है, B2 लिमिटेड में काम करो। सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, देखेंगे भैया हमारे पास B2 लिमिटेड कंपनी है क्या, हाँ जी है B2 लिमिटेड कंपनी। इसको प्रेस किया, काम करना शुरू कर दिया। अब मेरे पास देखो राइट हैंड लेफ्ट हैंड पैनल पे तीन कंपनी पड़ी हुई है, A1 लिमिटेड, A2 लिमिटेड, SOL क्लास 2 लिमिटेड। एक घंटे में मैंने काम किया B2 लिमिटेड के अंदर, फिर मैनेजर का फोन आ गया, एक काम करो कि आप हेमलता प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ये एंट्री आ गई है, इनको पास करो। हेमलता प्राइवेट लिमिटेड में काम करना शुरू कर दिया। तो जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करना साइमल्टेनियसली कर रहे होगे वो सारी इस पैनल में आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी। अब फिर मैनेजर का फोन आ गया कि हेमलता लिमिटेड को बंद करो, एक काम करो SOL क्लास 2 के अंदर ये जो सुबह काम पेंडिंग रह गया था इसको करना है। तो अब आप क्या करेंगे, दोबारा आपको सेलेक्ट कंपनी में से जाके SOL2 नहीं सेलेक्ट करना है, SOL2 देखो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही पड़ी हुई है कंपनी। तो SOL क्लास 2 को मैंने क्लिक कर दिया सिंपल, तो आप देखो ऊपर ये बोल्ड हो गई, इसका मतलब जो भी काम हो रहा है वो किस में हो रहा है, SOL क्लास 2 में हो रहा है। वापिस हेमलता को अगर मैंने क्लिक कर दिया तो आप हेमलता प्राइवेट लिमिटेड के अंदर पहुंच गए, वहां काम होना शुरू हो गया। 5 मिनट बाद आपने B2 में काम करना है, B2 में करो, A1 में करना है, A1 में करो, SOL क्लास 2 में आना है, यहाँ पे आओ। तो जो भी कंपनीज आपकी खुली हुई थी ये सारी कंपनीज यहाँ पे आपको इस पैनल में नजर आएंगी एंड यू कैन वर्क ओवर देयर। तो सेलेक्ट कंपनी हमारे पास दो रास्ते हैं, कंपनी इन्फो में से होते हुए या सेलेक्ट कंपनी में से होते हुए हम कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जितनी भी कंपनी सेलेक्ट करोगे ऑल दैट कंपनीज विल बी अवेलेबल और अपीयरिंग ऑन योर लेफ्ट हैंड स्क्रीन। एंड जो भी बोल्ड हो रही होगी इसका मतलब ये है कि अभी हम करंटली इस कंपनी के अंदर है। गलती मत कर देना कि लेफ्ट हैंड पैनल पे तो ये सारी कंपनी पड़ी हुई है, हम सोचते हैं अच्छा मैं तो यार हेमलता में तो काम कर रहा था, नो, ऊपर चेक कर लो भैया बोल्ड कौन सी हो रखी है, जो बोल्ड हो रखी है इसका मतलब आप उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हो करंटली। ठीक है, तो हमें कंपनी क्रिएट करना आ गया, कंपनी सेलेक्ट करना आ गया। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम आता है शट कंपनी, कंपनी बंद करना। कंपनी बंद करने से हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंपनी बंद करने का मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो गई, ठीक है, और उसका कारोबार बंद हो गया और आज के बाद उसके अकाउंट्स नहीं बनेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। शट कंपनी का मतलब टैली के अंदर क्या होता है कि अभी जो मैंने आपको स्क्रीन दिखा रहा था, यहाँ पे 4 कंपनी खुली पड़ी हुई हैं, आप इस कंपनी को क्या करना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन पे से बस हटाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या होता है शट कंपनी, कि वो आपके स्क्रीन से हट जाएगी। ठीक है, आपके रिकॉर्ड में रहेगी, सारे डेटा है, आप उसमें आगे काम कर सकते हो, सिर्फ आपकी स्क्रीन से वो कंपनी हट जाएगी। तो हम उसे क्या बोलते हैं शट कंपनी। तो प्रेस
ऑल्ट F3, ये भी कहाँ पे आएगा, वही कंपनी इन्फो के अंदर आएगा जहाँ से हमने कंपनी क्रिएट करी थी, जहाँ से हमने कंपनी सेलेक्ट करी थी, वहीं पर एक ऑप्शन होता है शट कंपनी का। तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट F3 में जाएंगे, शट कंपनी को प्रेस कर लेंगे। कौन सी कंपनी को आप बंद करना चाहते हैं, स्क्रीन पे से हटाना चाहते हैं, उसका नाम सेलेक्ट कर लेंगे और वो आपके स्क्रीन से डिसअपियर हो जाएगी। देख रहे हैं जो मैंने स्क्रीनशॉट आपके सामने रखा हुआ है प्रेजेंटेशन में, जितनी भी कंपनी यहाँ पे खुली हुई है उसमें से उसका नाम यहाँ से बस डिसअपियर हो जाएगा। तो select the name of the company that you want to shut. It does not mean delete of the company, just name of the company disappear from the screen of the gateway of Tele। जो मेरा स्क्रीन खुला हुआ था वहां से उसका नाम हट जाएगा, क्योंकि कई बार होता है ना, बुरा लगता है कि आप ये स्क्रीन खोल के बैठे हो, काम एक कंपनी में कर रहे हैं, 4 कंपनी खोल के बैठे हो, मैं चाहता हूँ ये यहाँ से हट जाए, तो उसको हम बोलते हैं शट कंपनी। कैसे काम करेगी देखो शट कंपनी, A1 मैं चाहता हूँ ये अब इसमें काम नहीं है, 4 दिन तक इसका कोई काम नहीं आना मेरे पास था, तो इसको हटा दो यहाँ से भी। तो A1 लिमिटेड को मैं शट कंपनी मतलब कंपनी बंद करना चाहता हूँ। इस पे पहुंचने के भी 2 रास्ते हैं आपके पास, आप कंपनी इन्फो में से जा सकते हो या ऑल्ट F1 शट कंपनी का ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो इसके पास भी पहुंचने के 2 रास्ते हैं, सीधा यहाँ से जा सकते हो या कंपनी इन्फो में जाओगे तो जैसे हमने सेलेक्ट कंपनी आया था, क्रिएट कंपनी आया था, ऐसे यहाँ पे शट कंपनी भी आ जाएगा। शट कंपनी करते हुए ड्रॉप डाउन आ जाएगा आपके पास कि कौन सी कंपनी, ये 4 कंपनी आप खोल के बैठे हो, किसको आप बंद करना चाहते हो। अभी एस्केप करके देखो, मैं वापस ले जाता हूँ आपको। यही काम हम क्या कर सकते थे, यहाँ शट कंपनी से क्लिक करके भी पहुंच सकते थे। तो दोनों रास्ते आपके पास है, कंपनी इन्फो से जा सकते हो या ऑल्ट F1 से जा सकते हो। वापस एस्केप कर दिया मैंने, तो हम यहाँ कंपनी इन्फो पे थे, शट कंपनी पे पहुंचे और यहाँ से मैं चाहता हूँ ये A1 लिमिटेड हट जाए, अभी इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि B2 लिमिटेड भी हट जाए, इसका कोई काम नहीं है, इसको भी हटा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये हेमलता लिमिटेड भी हट जाए, इसका भी कोई काम नहीं है। तो यहाँ जो आप देख रहे थे पैनल पे 4 कंपनी खुली हुई थी, अब सिर्फ एक ही कंपनी रह गई, SOL2 लिमिटेड, ठीक है। तो SOL क्लास 2 लिमिटेड हमारी जो कंपनी हमने बनाई थी, सिर्फ हम वो कंपनी यहाँ पे खोल के बैठे हुए हैं, बाकी सारी कंपनी हमने कर दी बंद। बंद करने का मतलब कारोबार बंद नहीं है, बंद करने का मतलब डिलीट करना नहीं है, बंद करने का मतलब यह है कि जो अभी वो अननेसेसरली वर्किंग थी, खुली हुई थी कंपनीज टैली के अंदर, टैली में हमने उनको बंद कर दिया। दोबारा खोलना चाहें, ठीक है, जाओ सेलेक्ट कंपनी के अंदर, सेलेक्ट कंपनी के अंदर दोबारा हेमलता लिमिटेड में काम करना है, क्लिक कर दो, दोबारा हेमलता लिमिटेड कंपनी खुल गई आपके पास। SOL2 क्लास 2 में जाना चाहते हो, SOL क्लास 2 में जाके काम कर लो। तो इस तरीके से हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं और कंपनी शट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है ऑल्ट्रेशन, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग है, गलतियां तो करेंगे, मशीन तो है नहीं, और टैली हमें बताएगा नहीं कि आपने कोई गलती करी है, क्योंकि कंप्यूटर कभी आके नहीं बताता है आपने गलती करी, वो तो आप जो इनपुट देते हो आपके सामने आउटपुट निकाल के रख देता है। अगर बाद में मुझे पता चला, मैनेजर के पास में लेके गया, लैपटॉप लो जी सर हेमलता लिमिटेड के अकाउंट बनके तैयार हो गए, चेक कर लो, अरे ये क्या किया तुमने, ये तो फोन नंबर ही इसका गलत डाल दिया आपने, ठीक करके लेके आओ इसको। ठीक है जी, ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे। तो ऑल्टर कंपनी पे जाना पड़ेगा आपको, और उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ हो गई आपको कंपनी में ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। रास्ते वही है आपके पास ऑल्ट्रेशन में जाने के लिए, कंपनी इन्फो में जाओगे, जैसे क्रिएट कंपनी आया था, जैसे सेलेक्ट कंपनी आया था, वहीं पे ऑल्टर कंपनी का एक आपको आइकन मिलेगा, उसको आप प्रेस कर दोगे ऑल्टर को, और जो भी आपको चेंजेस करने हैं आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। एक चीज का इसमें बहुत खास ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर कंपनी खुली हुई है SOL क्लास 2 लिमिटेड और आपने ऑल्टर प्रेस कर दिया तो उसी का स्क्रीन खुल जाएगा, पता चला आप करना क्या चाहते हैं, हेमलता लिमिटेड को ठीक करना चाहते हैं और कंपनी खुली हुई है SOL क्लास 2, तो ऑल्ट्रेशन भी गड़बड़ हो जाएगी। तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हेमलता लिमिटेड को पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर वहां जाके उसको ऑल्टर करना पड़ेगा। तो ये गलती मत कर देना, जो कंपनी खुली हुई है उसी को ऑल्टर करना शुरू कर दो, पहले चेक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, वहीं जाकर फिर हम उस कंपनी को ऑल्टर कर पाएंगे। सीखते हैं कैसे ऑल्टर कर पाएंगे, वापस आ जाते हैं। अब देखो बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे ये कंपनी इन्फो के अंदर ये ऑल्टर खुला हुआ है, अगर मैंने इसको ऑल्टर प्रेस कर दिया तो ये मुझे कहाँ ले जाएगा, सीधा सीधा SOL क्लास 2 के स्क्रीन पे ले जाएगा, क्योंकि मेरी कंपनी SOL क्लास 2 खुली हुई है और वो उसको ऑल्टर करना शुरू कर देगा, तो काम हो जाएगा गड़बड़। क्योंकि मुझे जो ऑल्टरेशन का काम मिला है वो हेमलता लिमिटेड का मिला है, तो मैं सीधा ऑल्टर ना दबा दूं यहाँ पे, उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, हेमलता को चाहे यहाँ से सेलेक्ट कर लो और चाहे सेलेक्ट कंपनी में से जाके सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने किया इसे ऑल्टर प्रेस किया, हेमलता लिमिटेड खुल गई कंपनी। अब इसमें आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं। हेमलता लिमिटेड के अंदर वेबसाइट नहीं डली थी फॉर एग्जांपल, अब डालना चाहते हो आप, यहाँ पे हम प्रेस कर देंगे, एंटर कर देंगे। एंटर प्रेस करते जाएंगे, लास्ट में पॉप आ गया यस नो, हमने सेव कर दिया। जो डेटा गड़बड़ थी वापस चेक करना चाहते हो, चेक कर लो हेमलता लिमिटेड को, क्या हेमलता.com वेबसाइट एड्रेस उसका डल चुका है, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, ऑल्ट्रेशन कर दिया।
वाई और नो एंटर प्रेस कर दोगे तो भी सेव हो जाता है। एस्केप कर दोगे वापस जाने के लिए, हम वापस आ गए हेमलता लिमिटेड के अंदर, हमने चेंज कर दिया, ऑल्टर कर दिया। तो आप देख रहे हो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी करना सीख लिया, कंपनी बंद करना सीख लिया, कंपनी क्रिएट करना सीख लिया और कंपनी ऑल्टर करना सीख लिया। तो ये 4 चीज हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जो भी धरती पे आया उसको जाना पड़ेगा। तो ऐसे ही कंपनी खुली है तो हमेशा आपके पास उसका काम रहेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 2 साल 10 साल 20 साल बाद कंपनी का काम आपके हाथ से निकल जाए और आपको अपने सॉफ्टवेयर में से उस कंपनी को डिलीट करना पड़ जाए, हटाना पड़ जाए। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन हाउ टू डिलीट कंपनी। तो डिलीट कंपनी करने के लिए हमारे पास कोई आइकन नहीं है। देखो यहाँ पे कंपनी हम सेलेक्ट कर सकते थे, कंपनी हम शट डाउन कर सकते थे, कंपनी हम क्रिएट कर सकते थे, कंपनी हम ऑल्टर कर सकते थे, लेकिन डिलीट कंपनी का ऑप्शन हमारे पास कहीं पर भी नहीं है। तो हम कैसे करें भैया डिलीट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई। डिलीट करते हुए भी हमें क्या करना है, ऑल्ट F3 में जाना है, कंपनी को सेलेक्ट करना है, ऑल्टर प्रेस करना है। ऑल्टर प्रेस करते हुए बाय डिफॉल्ट जो कंपनी सेलेक्ट हो रखी होगी वही ऑल्टर होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप किसी और कंपनी को बंद करना चाहते हो तो पहले उसे सेलेक्ट कर लेना, जैसा कि मैंने अभी पहले भी आपको सिखाया। उसके बाद ऑल्ट्रेशन में जो भी हमने स्टेप फॉलो करे वही स्टेप आपको यहाँ पे फॉलो करने हैं। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, ऑल्ट प्लस डी प्रेस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लेना, ऑल्ट प्लस डी। ऑल्ट प्लस डी की विंडो जब आप प्रेस करोगे तो एक विंडो खुल जाएगी जो आपको नीचे नजर आ रही होगी प्रेजेंटेशन के अंदर। डिलीट की एक विंडो खुल जाएगी और आपसे पूछेगा वेदर यू वांट टू डिलीट दिस कंपनी परमानेंटली और नॉट, क्योंकि अब डिलीट कर दी तो वो जिंदगी भर के लिए मेरे टैली में से उड़ जाएगा डेटा, फिर रिट्रीव नहीं हो पाएगा वो। अगर मैं चाहूँ हेमलता लिमिटेड को मैं डिलीट कर दूं और वापस आ जाए तो वो वापस नहीं आएगी, वो कंपनी हो जाएगी खत्म। ठीक है, तो डिलीट करते हुए आपको पहले अच्छे से सोच लेना है। तो अब मेरे पास फॉर एग्जांपल SOL क्लास 2 को मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो मुझे ऑल्टर में जाना पड़ेगा। और आपको पता है ऑल्टर में जाने मैंने प्रेस कर दिया तो मुझे सीधा कहाँ ले जाएगा, हेमलता पे ले जाएगा। तो ऑल्टर मैंने प्रेस किया तो हेमलता जिसने सेलेक्ट कर रखा है, मुझे हेमलता पे नहीं जाना है, मुझे SOL क्लास 2 पे जाना है। तो ये वही ऑल्टरेशन वाला स्क्रीन खुल गया। यहाँ पे मुझे क्या करना है, ऑल्ट डी प्रेस करना है। ऑल्ट डी प्रेस करोगे तो एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा, डिलीट येस और नो, वेदर यू वांट टू डिलीट दिस कंपनी और नो। ठीक है, इसको पूछने का कोई और रास्ता नहीं है, कोई और की नहीं है, हमें ऑल्ट डी से ही ऑल्टरेशन में जाके इसको खत्म करना होगा। तो मैंने प्रेस कर दिया वाई। दोबारा पूछ रहा है क्योंकि जिंदगी भर का सवाल है, सारा डेटा उड़ जाएगा। पूछ रहा है दोबारा, आर यू श्योर, आप पक्का इसको डिलीट करना चाहते हो? मैंने कर दिया वाई, यस। अब ये SOL क्लास 2 लिमिटेड कंपनी जो मैंने बनाई थी मेरे खातों में से उड़ गई। चेक करना चाहता हूँ कि है या नहीं है। सेलेक्ट कंपनी पे जाओ, सेलेक्ट कंपनी में आप देख सकते हो सारी वो कंपनीज पड़ी हुई हैं जो पहले थी मेरे पास। SOL क्लास 2 लिमिटेड कंपनी मेरे पास अब नहीं बची। तो सारा डेटा जो था वो हो गया सारा उसका डिलीट। अब आपको कुछ भी करना है तो दोबारा करना पड़ेगा, वो कंपनी आपके पास अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया, कंपनी इन्फो के अंदर जाके हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, कंपनी बंद कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, कंपनी ऑल्टर कर सकते हैं और कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें कंपनी से रिलेटेड थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कीज की हमने बात करी। तो सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर ली होंगी और अच्छे से उन्हें प्रैक्टिकल पेपर हो तो भी आप अप्लाई कर पाएं, और अगर थियोरेटिकली आपके पास आ जाए हाउ टू क्रिएट कंपनी, हाउ टू शट डाउन कंपनी, तो भी आप उसको अच्छे से आसानी से लिख पाएं कि क्या इसके स्टेप्स हैं। इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली भी करके भी दिखा दिया कि प्रैक्टिकल पेपर होगा तो आप प्रैक्टिकली करके आ जाए वहाँ पे, और अगर रिटर्न पेपर हो गया, OBE टाइप का पेपर हो गया, तो आप उसको लिख भी पाएं। इसलिए मैंने आपको सारी की सारी चीजें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन के अंदर भी दिखा दी है, समझा दी है, बता दी है। ठीक है, जिससे कि एग्जाम के अंदर किसी भी तरीके से आपसे ये सारी चीजें जब पूछी जाएं, यू शुड बी एबल टू राइट डाउन, यू शुड बी एबल टू work on Tally. So I hope all the things are clear to you. I am minimizing the screen and coming to the main screen. If you are having any doubt, then you can write down in a chat box और QA टैब। कुछ भी आपके डाउट हैं तो QA टैब के अंदर बेटा आप लोग लिख सकते थे। I will try to resolve your problems. Is today class or not? Obviously हो ही रही है क्लास, क्यों पूछा पता नहीं। Sir, how can we ask doubt question to you? Obviously in the QA tab right now. सर टैली प्राइम शो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। टैली प्राइम भी आप ले सकते हो, टैली ERP9 भी ले सकते हो, बोथ आर सेम। सर डू आई हैव टू डाउनलोड टैली ERP9 बिकॉज आई हैव टैली प्राइम? दोनों एक ही जैसे काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, नेक्स्ट टाइम मैं चैट बॉक्स के अंदर लिंक शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, वहां से आप टैली ERP9 भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। या दोबारा अपने आप भी देख सकते हो, टैली ERP9 लिखोगे सीधा गूगल पे, सबसे पहला लिंक वही खोलता है। सर कैन आई डू टैली इन माई स्मार्टफोन? स्मार्टफोन में बेटा टैली सॉफ्टवेयर नहीं चलता एंड्रॉइड में। सर यू विल शेयर टैली डाउनलोड लिंक प्लीज? यस आई विल श्योरली गिव यू इफ यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। पहले ट्राई कर लो, नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना, मैं लिंक दे दूंगा।
सर स्क्रीन ब्लैंक हो रहा है तो आपका नेटवर्क इशू होगा, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी। पेपर प्रैक्टिकल होगा या थ्योरी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस। स्मार्टफोन पे टैली नहीं हो पाएगा, यू नीड लैपटॉप और डेस्कटॉप। अलग अलग कंपनी सेलेक्ट करनी है, डेटा सेव तो होगा ना, ऑब्वियसली यस। जैसे ही आप वाई प्रेस करते थे डेटा सेव हो जाता था, कहीं नहीं जाएगा वो। जब आप दूसरी कंपनी में काम करना शुरू करोगे और वापस आओगे तो आपका डेटा वहीं मिलेगा। Everything was very easy to understand. Thank you, sir. Most welcome, beta. We need this kind of the feedback from you always to get motivation for the future classes. Great class, loved it so much. Thank you, beta. You will conduct paper online, offline, depending upon the circumstances. सही हुआ सब कुछ तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, नहीं हुआ सब कुछ ठीक तो थ्योरी में होएगा, वो भी फॉर्म में ही होगा। तो थिंग्स आर नॉट क्लियर टू इवन द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो अभी हम इन सब चीजों के आंसर की बात ही नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे क्लास में, नो वरी अबाउट दैट। टैली ईआरपी 9 और प्राइम दोनों एक जैसे ही है, मैं सजेस्ट करूंगा 9 में ही काम करो, प्राइम में मत करो। हल्का फुल्का तो डिफरेंस होगा तो, लेकिन क्योंकि सजेस्टेड सिलेबस में टैली ईआरपी 9 है तो उसी में ही काम कर लो। कंपनी ऑल्टर करने वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दो। बहुत आसान था बेटा, कंपनी जहाँ पे कंपनी इन्फो का स्क्रीन था वहीं हमने कंपनी क्रिएट करी थी, कंपनी शट डाउन करी थी, वहीं ऑल्ट्रेशन का स्क्रीन था। ऑल्ट्रेशन करते हुए पहले कंपनी सेलेक्ट कर लेना कि किसको ऑल्टर करना चाहते हो, और वो एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा। एंटर एंटर प्रेस करो, जहाँ पे भी करेक्शन करनी है करेक्शन करो, एंटर 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 प्रेस करके लास्ट में यस नो पूछेगा, सेव करना है नहीं करना, यस कर लेंगे। ब्रिलियंट क्लास सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू बेटा, मोस्ट वेलकम। इसके लिए कोई बुक आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरी क्लास अटेंड करते रहोगे अच्छे से तो भी काम चल जाएगा। कोई बुक नहीं आती भी नहीं है सच, क्योंकि वही जो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो उसी में थोड़े से पेज आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज टैली की एक बुक आती है, वहां से आप एक सारी चीज देख सकते हो। अदरवाइज द क्लासेस आर मोर देन एनफ। I hope all the things are clear to you. Now I am leaving the class. Again, we will meet on next Tuesday at the same time, 3:30. Goodbye, everyone. Thank you, sir. मैं अपना क्लास एंड कर देता हूं। हाँ जी सर, हाँ, थैंक यू। ओके।